आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व। वेल, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोर्ट्स शो, दैट इज खेल की बात, रेडियो टशन के साथ। In the show, as always, my guest, or sometime he has been an anchor as well, Mr. Ramakishan ji. Welcome back, man, on the show again. जी शुक्रिया। India versus Bangladesh, a dead rubber it was, but in the end, it was nothing more than that, more than an upset, because Bangladesh defeated India in the match, which was a dead rubber. No means of that match in the Asia Cup, because India is already through to the finals. They'll be playing against Sri Lanka on Sunday, 17th of this month at 3 p.m. Indian Standard Time. But again, this match was for the testing of the bench strength. According to me, something silly happened by Indian team, or something silly did the players of India, or whatever you want to say. There are a number of adverb, verb, adjective you can simply use. But again, it was a poor show as far as batting, bowling, everything is concerned. Yes, at one stage, India looking like they are in control. Again, there will be some mistake, in speaking, because we both are very disturbed the way India lost this game. That might be a reason why there'll be something here and there in speaking. So please do not just focus on those. Just listen to the points what we are going to discuss in the match. India win the toss, decided to field first. Bangladesh at one stage 4-wicket down very early. Then good partnership between Shakib and another batsman, a very young, famous batsman as far as Bangladesh is concerned. Toido Roy, something like that. The name is of that player. He played a fantastic knock, nearly got 2 or 3 lifelines, or whatever you want to say. Catch has been dropped by Indian team on number of occasions. Surya Kumar Yadav came in, dropped catches. Tilak Verma drop catch. My God, there are a number of negatives which took place in the match today, in the event today. So they batted first, scored 265 in 50 overs, played full quota of 50 overs, and in reply, India dismissed on 259. Though Shubman Gill played a fantastic knock, over 100 runs he scored. Though he was injured. 121. Yes, 121 to be precise. He was injured sometime, but again, very painful situation. At one stage he was in, but again played a fantastic knock. Tried to lift the thing on his shoulder, but again that was not enough. It was not in the winning cause. So there are lots of negative things, as I earlier said. So let's start discussing how the thing went or panned out. हाँ भाई, रामकृष्ण जी, बांग्लादेश इंडिया डेड रबर, कोई मतलब नहीं हालांकि इस मैच का, लेकिन फिर भी भारत के नजरिए से ये मैच बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता था। मेरी अपनी राय, भारत को शायद जब फाइनल श्रीलंका से खेलना था, तो जो अब तक की आपकी 11 थी उसके साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता थी नहीं। और फिर जब आपने थोक के भाव में चेंज कर दिए, लगातार 5 परिवर्तन आपने कर डाले, जाने में शायद वो ठीक नहीं था, जाने अनजाने वो परिवर्तन भारत के लिए शायद रास ना आया हो। आपकी राय इस पर, और उसके बाद जीत हार की तो बात की बात। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारत ने परिवर्तन किए, मुझे लगता है वो कारण नहीं था इस हार का। लेकिन मुझे लगता है जो बैटिंग ऑर्डर सेट किया जो कप्तान और कोच ने, मुझे लगता है ये हार की वजह हो सकती है। क्योंकि आप देखिए, भारत ने 11 भी मैच खेला, 12 भी मैच खेला और जाके 15 मैच खेला। और जब भारत को पता है कि भारत फाइनल में पहुंच चुका है और एक दिन का गैप है, 17 को फिर फाइनल है, तो मुझे लगता है भारत किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। जो उनके टॉप 11 प्लेयर हैं, या यूं कहें जो उनके महत्वपूर्ण प्लेयर हैं,
उनको भारत नहीं किसी जोखिम में डालना चाहता था, तो उसने इस मैच के लिए एक नई टीम खिलाई, या यूं कहें कुछ नए चेहरे जो स्क्वाड में थे, 17 स्क्वाड में थे, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन 5 खिलाड़ियों को भारत ने मौका दिया। वो अलग नजरिया है कि रिजल्ट क्या रहा नहीं रहा, लेकिन मेरी अपनी राय है जो भारत ने मौका दिया है वो गलत नहीं किया है। बाकी हार जीत पे आप कह रहे थे बाद में बात होगी, तो बिल्कुल यही बात है। मेरे हिसाब से जो चेंजेस थे वो गलत नहीं थे। जहां तक मेरी अपनी राय है, एक आध चेंज, फोर्स चेंज अगर नहीं हो तो शायद आपको जरूरत थी नहीं, क्योंकि आपको अगली एक दिन के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर श्रीलंका जैसी मजबूत टीम अपने घर में है, इसलिए मैं उन्हें मजबूत कह रहा हूं। अदरवाइज श्रीलंका कोई इतनी वैसी टीम नहीं जिसको आप बहुत ये कहने की जी ऑस्ट्रेलिया से बेहतर टीम है। हाँ, ठीक बात है, श्रीलंका लगातार मैचेस जीतती आई है, वो अलग टीमें रही। हालांकि श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को हराया, उस मैच पर आऊंगा मैं, वो बड़ा रोमांचक मैच था, उस मैच पर भी आऊंगा मैं। लेकिन मुझे लगता है ये चेंजेस कुछ ज्यादा थे। आपकी राय जुदा है, वो अलग मामला है। और मैं समझता हूँ बैटिंग ऑर्डर, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, ये एक महत्वपूर्ण कारण है भारत की हार का। और एक बात आपको बताता चलूं, इससे पूर्व केवल 2012 में ऐसा हुआ था जब एशिया कप में भारत को बांग्लादेश ने हराया था 5 विकेट से, उसमें शाकिब उल हसन मैन ऑफ द मैच थे। और आज भी कमोबेश ऐसा ही होने की संभावना है, शाकिब उल हसन ही मैन ऑफ द मैच होंगे। तो 2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए और दोनों बार इत्तेफाक कह लीजिए या फिर मुकद्दर कह लीजिए, बांग्लादेश की तरफ से मैन ऑफ द मैच का खिताब शाकिब उल हसन को ही मिलना तय लगभग माना जा रहा है। जहां तक हम लोग की अपनी राय है, आराम किशन जी आपकी मेरे राय। हिसाब से शुभमन गिल को होना चाहिए प्लेयर ऑफ द मैच। हाँ, वही मैं कह रहा था, आपकी राय क्या है आप जरूर बताएं। बट आई जस्ट बिलीव इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे क्रिकेट it just happened very little, when the losing team batter got man of the match। ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। इसलिए शायद मुझे लगता है, जितना मेरा अनुभव है, शायद साकिब अल हसन को मैन ऑफ द मैच दे दिया जाएगा। तो ये तो रही एक बात। भारत की बॉलिंग हमेशा से चिंता का विषय या कारण कई वर्षों से बनी है, खास करके टेलेंडर्स को लेकर। और आज भी स्थिति ऐसी थी, जब 3-4 विकेट जल्दी गिर गए, उसके बाद एक साझेदारी को पनपने का मौका दिया भारत ने, और वो 101 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। उसके बाद फिर जो भारत के जो बांग्लादेश के बल्कि लोअर ऑर्डर्स के बैट्समैन हैं, 7, 8, 9, 10, 11, इन्होंने भी भारत के खिलाफ हमेशा से अच्छे रन बनाए हैं, ये आपने नोट किया होगा। अगर आपने आज विनीत गर्ग और प्रकाश वाकंगर को ऑल इंडिया रेडियो पे सुना होगा, तो इसी बात पर डिस्कशन चल रहा था। बड़ी खुशी की बात थी, आज विनीत गर्ग साहब कमेंट्री करने आए थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए भारत ये मैच गवा बैठा और उनको एक बार फिर बोलना पड़ा, भारत मैच हार गया। तो ये बड़ा कम होता है ऐसे विनीत जी की कमेंट्री में, बाय द वे। लेकिन फिर भी खेल को खेल के नजरिए से देखें, हार जीत किसी कमेंटेटर पर कभी निर्भर नहीं करती। हालांकि हमारी अपनी कुछ मान्यताएं, अंधविश्वास या कुछ भी कह लीजिए, कि संजय बनर्जी कमेंट्री करे तो भारत हार जाता है, विनीत जी कमेंट्री करते भारत जीत जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो खैर, क्या लगा आपको, 266 रन को ज्यादा थे चेस करने के लिए, या फिर अगर अगर पॉजिटिव इंटेंट से क्रिकेट खेलते तो शायद वो रन ज्यादा थे नहीं इस पिच देखिए पर? देखिए भारत ने डिसीजन गलत लिया। प्रेम दासा का जो विकेट है, ये जो विकेट अब तैयार किया गया है, जो इस श्रृंखला के लिए तैयार किया गया, मैं बार बार देख रहा हूँ, यहाँ चेज करना सच में बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। इसका मैंने कई मोर्चों पे अध्ययन किया कि यहाँ पे शुरू में गेंद सही आता है, बाद में गेंद बैट पे आना बहुत धीमा हो जाता है, बहुत गेंद रुक के आता है, और यहाँ पे स्ट्रोक मेकिंग उतनी ही मुश्किल हो जाती है। इसके मैं आपको कई उदाहरण दूंगा, जिसमें पहला उदाहरण है वो जिस मैच के बारे में मैं जिक्र करना बिल्कुल सही समझता हूँ, और वो ये कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शायद पहले बैटिंग की थी, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। 328 56 बना डाले बिल्कुल थे। 356 बनाए थे, और बाद में सुनने में आया कि विकेट स्लो हो गया,
हाँ, एक बात जरूर है कि जो पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच हुआ वो मुझे मेरे समझ से परे है कि वो क्या पाकिस्तान ने गेंदबाजी खराब की या श्रीलंका ने आउट ऑफ क्लास सच में वो इनिंग वो एक साझेदारी समीरा विक्रमा की हुई कुशल मेंडिस के साथ। तो कुशल मेंडिस का वो जो नॉक 90 रन का था शायद वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, या ये जो भी कुछ हुआ पाकिस्तान ने खराब खेला। यदि उस मैच को मैं छोड़ दूं तो विकेट वास्तव में, क्योंकि भारत श्रीलंका का भी जो मैच हुआ जिसमें भारत ने 213 रन बनाए, तो उस मैच में भी यही स्थिति लगभग हो गई थी कि जो है यहाँ श्रीलंका को आखिरकार चेज करते हुए हार माननी पड़ी। एक समय लग रहा था 6 विकेट 99 के फेर में ले लिए थे भारत ने। फिर एक साझेदारी वेलेज और डिसल्वा के बीच हुई, तो लेकिन उसके बाद जैसे ही सेट बैट्समैन आउट हुए विकेट वही कठिन होता चला गया, वही आज हुआ। मेरे हिसाब से भी टॉस जीत के बल्लेबाजी को चुना जाता और उनको हल्के में नहीं लिया जाता। तो मेरे और एक तो डिसीजन वो, दूसरी बात हमने कैचेस छोड़े। एक समय 61 पे 4 हो गए थे, 5वें विकेट के लिए वो 100 रन की साझेदारी ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उसके बाद एक साझेदारी और हुई। 59 पर 4 विकेट गिर गए थे और जी जी हाँ, उसके बाद जी हाँ, 101 रन की पार्टनरशिप। हाँ जी। तो उसके बाद छोटी छोटी साझेदारियां हुई, फिर एक साझेदारी और हुई जो 200 193 से 238 तक हुई। यानी 45 रनों की। जी हाँ। हम्म। तो मोटा मोटी ये कहें कि ये 8वें विकेट की साझेदारी थी। तो कहीं ना कहीं भारत ने गेंदबाजी खराब की है, मैं मानता हूं, मगर मुझे लगता है कि पहले यदि बल्लेबाजी करते तो भारत 300 रन यदि बना देता तो बांग्लादेश दबाव में बिखर जाता। हाँ, मैं ये मानता हूँ बिल्कुल, भारत को टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। नए प्लेयर्स को जब आपने मौके दिए हैं, तो उनको एक फ्री टाइम मिलता, क्योंकि यहाँ पे दबाव था इनके पास कि इतने रन बनाने हैं आपको, और पिच हमेशा से ये देखा गया है इस खास करके एशिया कप में स्लो होती रही है सेकंड इनिंग में, और सब एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे थे कि ये बड़ा अजीबो-गरीब फैसला है। हालाँकि साकिब अल हसन बड़े कन्फ्यूज़ लग रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपने टॉस पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके विचार सुने हो तो यही बोला उन्होंने, और यहाँ मैं कन्फर्म कर दूँ आपको, साकिब अल हसन को मैन ऑफ द मैच दे दिया गया है। तो मैं वही कह रहा था आपसे, विनिंग टीम को अक्सर दिया जाता है, और एक बार फिर से वो इतिहास बन ही तो गया जब साकिब अल हसन को भारत की एक और हार के लिए ज़िम्मेदार माना जा सकता है, उन्हें मैन ऑफ द मैच दे दिया गया, जैसा कि 2012 में एक एशिया कप के मैच में हुआ था। खैर, हम चर्चा कर रहे थे, उससे पहले आपको एक बार स्कोर कार्ड की तरफ ले चलता हूँ। रोहित शर्मा ने खाता नहीं खोला, कोई रन नहीं बनाया। साकिब जो नए बांग्लादेशी प्लेयर हैं, 145वें प्लेयर डेब्यू किया आज के मैच में, उन्होंने उनको पहले ही ओवर में चलता कर दिया। न जाने किस जल्दबाजी में रोहित शर्मा खेल रहे थे, पता नहीं। उसके बाद भारत की तरफ से आप जानते हैं, तिलक वर्मा ने डेब्यू किया, 252वें खिलाड़ी बने भारत की तरफ से, और शुभमन गिल 133 बॉलों में 121 रन, 8 चौके और 5 छक्के। तिलक वर्मा 9 बॉलों पर 5 रन, 39 बॉलों पर 19 रन। विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल। ईशान किशन 15 बॉलों पर 5 रन। यादव 34 बॉलों पर 26 रन। जडेजा 12 पे 7। अच्छा, अक्षर पटेल ने एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली, वो घायल हुए, उनके कई बार हाथ में चोट लगी, थ्रो भी एक लग गया। 38 बॉलों पर 42 रन, माफ करिएगा 34 बॉलों पर बल्कि 42 रन बनाए। वो बड़ी अच्छी इनिंग खेली उन्होंने भारत को। कारण एक समय 12 गेंदों में 70 रन चाहिए थे। हाँ, बिल्कुल, वो जो छक्का और चौका लगा था उस ओवर में, उसने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया भारत की तरफ। ऐसा लगा कि भारत इस मैच को जीत सकता है, लेकिन एक गलत शॉट पटेल साहब के बल्ले से वो सीधा हाथ में चला गया। मुस्तफिजुर की बढ़िया बॉल थी, दोनों उस ओवर में 2 खटाखट विकेट ले डाले। भारत की रनिंग भी ना मालूम क्यों आज के मैच में ऐसी नजर नहीं आई, कई बार गफलत हुई। हालांकि
विकेट उस रूप में नहीं गिरा, लेकिन कई बार आप देखते हैं जब आपके पास ज्यादा रन नहीं होते हैं, 266-70 रन कोई बहुत बड़ी मुझे लगता है चीज नहीं है चेज करना 50 ओवर के मैच में आजकल के जमाने के हिसाब से। एक जमाने में 270 रन 350 के बराबर माने जाते थे, लेकिन आज के कल की पिचेज ऐसी हैं, बैट्समैन ऐसे हैं, बैटर्स ऐसे हैं और या बैट ऐसे हैं, तो रन आसानी से बनते रहते हैं। हालांकि आज की पिच थोड़ी सी कठिन थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, और उसके बाद नए बैट्समैन ठाकुर, हाँ, 11 रन बना इन्होंने भी 13 गेंदों पे। और शामी आखिर रन आउट की बात मैं जो कर रहा था, रन आउट हुए, एक विकेट रन आउट के रूप में गिरा, 6 बॉल पे 6 रन बनाए इन्होंने। और प्रसिद्ध कृष्णा 2 बॉल पर कोई रन नहीं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के साथ बांग्लादेश की समस्या रहती है, 17 रन दे डाले एक्स्ट्रा के रूप में। तो ये तो रहा भारत का स्कोर कार्ड। बांग्लादेश का आपने सबने स्कोर कार्ड देखा ही होगा। 80 रन बनाए साकिबुल हसन ने 80 रन बनाए, 56 रन बनाए उनके जो एक और अच्छे बैट्समैन हृदय ने। हाँ बिल्कुल, वो पता नहीं उनका नाम इस तरह से रखा गया है, ऐसा लगता है हृदय को छू जाता है कई बार वो नाम। और बड़ी अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। उसके बाद नीचे डाउन दी ऑर्डर आके 8वें नंबर के बैट्समैन ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए। नसूम करके एक प्लेयर है, बड़ी अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, नियरली 50 के आसपास 47 रन के आसपास उन्होंने बनाए। तो ये कुछ बांग्लादेश के लिए जो कंट्रीब्यूशन थे वही रहे। भारत श्रीलंका, श्रीलंका अच्छी टीम अपने घर में खेल रही है। आज तो जो हुआ सो हुआ, इस मैच का कोई खास मतलब था नहीं, डेड रबर था। लेकिन मुझे लगता है भारत ने कुछ कैजुअल ले लिया और शायद डेड रबर की तरह ही खेला, जो कि एक सही टीम का एटीट्यूड दर्शाता नहीं है। अगर आपको उस मैच से कुछ भी न मिलने वाला हो, उसके बाद भी आपको उस मैच में कम से कम अपना 100% देना चाहिए। तब तो भारत कहीं ना कहीं इस बार इस मामले में पीछे रहा और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत नजदीक है, मुंह बाय खड़ा हुआ है। अक्टूबर में से शुरू होना है, सितंबर 30 से अभ्यास मैचेस शुरू हो जाएंगे भारत का। 30 अक्टूबर सितंबर को शायद मैच अभ्यास है भी, या फिर 2-3 अक्टूबर को भी तमाम मैचेस भारत के हैं अभ्यास में। तो वहां पर आपका स्क्वाड उतरेगा, आप टेस्ट करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, भारतीय क्रिकेट टीम ने कहीं ना कहीं ये इस मैच को डेड रबर के रूप में ही खेला, या फिर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते हार गए? हाँ नहीं, मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट हुए और कोई डिसीजन सही नहीं रहे, कुछ हक में नहीं गए डिसीजन जो होने नहीं चाहिए थे। और बाकी बांग्लादेश ने बॉलिंग वास्तव में बहुत एक क्लास की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिच भी स्लो थी। तो यदि इन सबको एक कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से सबका निष्कर्ष एक ही है कि कहीं न कहीं भारत ने टॉस जीत के बल्लेबाजी नहीं की। वो प्राइम कारण है। यदि बल्लेबाजी करता, यदि पहले बोर्ड पे रन लग जाते, यदि बॉलरों के लिए कोई जमा पूंजी होती, तो मुझे लगता है आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं जो कैचेस भी भारत ने छोड़े, उस वजह से भी 20-30 रन एक्स्ट्रा बने बांग्लादेश के, बल्कि ज्यादा ही आप कह सकते हैं। यह हाँ 61 पे 4 होने के बाद कम से कम मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि टीम 200 से ज्यादा नहीं बनेंगे। बिल्कुल, अगर वो कैचेस पकड़ लिए जाते। और एक बड़ा चर्चा का विषय चल रहा है सूर्य कुमार यादव की टेक्निक पर, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट पर, द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ in one day international. Yes, he's a great player of T20, has been on number one spot from for very long time. But again, the way he is approaching in one day international, though he played a fantastic knocks in domestic cricket, और डोमेस्टिक क्रिकेट खाली T20 का होता नहीं है, वहां पे आपको 3 दिन 4 दिन के मैचेस भी खेलने पड़ते हैं, 50-50 ओवर्स के भी होते हैं। तो वहां पे बहुत रन बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने। तो ऐसा आखिर है क्या जो वो इंटरनेशनल लेवल पर वनडे में कुछ खास असर नहीं छोड़ पा रहे हैं? देखिए, बात वही आती है घूम फिर के कि डोमेस्टिक खेलना अलग चीज है और कंट्री को रिप्रेजेंट करना अलग चीज है। और फिर दूसरी बात, आजकल के समय में T20 क्रिकेट हावी है सब जगह। तो मुझे लगता है केवल मेंटेलिटी को चेंज करना जरूरी है। बाकी उनके पास टेक्निक, उनके पास शॉट्स सारे हैं। बस केवल एक मन में एक विश्वास जगाना बाकी है कि वो एक दिवसीय क्रिकेट में भी अपने गेम को
अच्छे से पहले गेम को बनाए, उसके बाद यानी पारी को पेस करें, पेस करने के बाद फिर एक्सेलरेट करें। हाँ, ये हो सकता है। खैर, now let's talk about another twist or cracker of the game, which was played yesterday till 1 a.m. in the midnight. Sri Lanka versus Pakistan. It was a curtail game. First 45 overs, then another rain interruption, then it was 42 overs of game where Pakistan, but at first scored 252, which was looking like a very, very competitive score. The way Pakistani bowling lineup is, yes, there are some injury concern. Now, Pakistani team is out of the tournament. But again, we are discussing the match which took place yesterday. Sri Lanka came down to chase 253 in 42, was nearly 6 runs on a little more over 6 over. Yes, I think a little over 6.10, something like that. Yes, 6.10. 253 was a target in 42 overs on a pitch like that, which is very slow. It's same pitch which is being used today's match, So it was slowish pitch, but again, Sri Lanka battled beautifully. The way they ran, the way they rotate the strikes. Yes, there was a collapse, as you said in a conversation with me off air. It will be a collapse, and same thing took place, man. There was a collapse at one stage. 6 needed of 2. We were expecting that it's Pakistan game because Zaman Khan was the very new bowler. Actually, came in the absence of Naseem Shah, as well as Rauf and some other key players. So he just was trying to deliver for his side, but again, did not do it. So Pakistan lost that game on the last delivery of the 50th over, and they are out of the tournament. Now India will take on Sri Lanka on Sunday, 17th of September at 3 p.m. Indian Standard Time. It will be broadcasted on All India Radio as well as Hotstar, Star Sports Network. As you all know, you can simply go and watch it out. Yes, your thought on the Pakistan and Sri Lanka match? जी, पाकिस्तान श्रीलंका का मैच जो हुआ, सही मायने में मुझे लगता है नसीम शाह और रौफ के ना होने से वो पैनापन कम हो गया। और दूसरी बात, उनको एक प्लेयर बड़ा जबरदस्त मिला है, समीरा विक्रमा, जो 4 नंबर पे आता है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। मैं कहता हूँ उनको दूसरा श्रेयस अय्यर मिल गया, मैं कहता हूँ उनको दूसरा विराट कोहली मिल गया, मैं कहता हूँ उनको दूसरा महिला जयवर्धने मिल गया। तो इस टाइप का वो प्लेयर है और बहुत बढ़िया। साथ में तारीफ करनी होगी कुशल मेंडिस की। लेकिन एक गेंद में 2 रन चाहिए हों, सारे फील्डर अब बाउंड्री पे भेज दें, मुझे लगता है टेक्निक में एक कमी थी। सबको सिंगल रोकने की स्थिति में रहना चाहिए था, जो मेरा अपना विचार है कि सिंगल रोकने की स्थिति में सबको रहना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है जब सब बाउंड्री पे चले ही गए, शायद 5 या 6 खिलाड़ी बाउंड्री पे थे, और जब सब बाउंड्री पे चले ही गए तो सिंगल डबल तो आराम से हो ही जाना है। तो मुझे लगता है मानसिकता का खेल था। ये 2 गेंदों में 6 रन चाहिए हों तो बॉलिंग टीम भी अपने आप को गेम में मानेगी। बिल्कुल। लेकिन उस गेंद पे चौका लग जाना और लास्ट गेंद पे डबल भागना, ये मुझे लगता है एक पाकिस्तान की टैक्टिक में कमी थी, जिसका कि खामियाजा भुगतना पड़ा। काफी खरी खोटी सुनाई गई बाबर आजम को और काफी बातें हुई। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल टूटे। सब चाहते थे भारत पाकिस्तान का फाइनल हो, ऐसा हो न सका और कहीं न कहीं इसके लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। और लेकिन श्रीलंका ने भी कम से कम अपने आप को जिंदा रखा और अपनी बादशाहत को मिटने नहीं दिया। ऐसा नहीं होने दिया श्रीलंका ने कि लोग सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान की तरफ ही टकटकी लगा के देखते रहे। मुझे लगता है श्रीलंका ने जो वो अपने विकेट पे खेलने की आदी हैं, अभ्यस्त हैं, उनको बिल्कुल सही साबित करते हुए पाकिस्तान को रौंद डाला।
Absolutely. Pakistan were completely outplayed by Sri Lanka in the match. And that's the reason they are out of the tournament. They would have packed their bag. वैसे भी श्रीलंका से पाकिस्तान बहुत दूर है नहीं, तो दे माइट हैव गॉन टू देयर होम्स, और पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा, नो आइडिया। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स और न्यूज चैनल्स के बारे में आप सब जानते हैं, जीतने के बाद हीरो और हारने के बाद जीरो से भी अगर कोई माइनस संख्या हो सकती है वो भारत का मीडिया भी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सभी देशों के मीडिया का यही हाल है। खैर, एक बात आपको बता चलूं, श्रीलंका 11वीं बार एशिया कप का फाइनल खेल रही है, और भारत पाकिस्तान का आज तक 1984 जब से एशिया कप की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक कोई भी फाइनल न हो सका। एक उम्मीद थी कि तीसरी बार हम मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका, और श्रीलंका एक बार फिर फाइनल खेलेगी। और हालांकि भारत के पास ज्यादा ट्रॉफीज हैं एशिया कप की, लेकिन क्या पता श्रीलंका इस बार उसको बराबर कर ले। बहरहाल आज के शो में इतना ही, हमें लगता है काफी। एक चीज बोले मैं बोले ऐड बोले। करना चाहूंगा हम्म कि जो भारत श्रीलंका का जो मैच है ना, ये अच्छा मैच होगा। एक तरफ मेजबानों की ताकत होगी, दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम उनके सामने होगी। और दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान यदि फाइनल में नहीं है, तो मेरी व्यक्तिगत राय है, इससे रेडियो स्टेशन का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंची तो मेरे अनुकूल ये ठीक ही हुआ। इसका कारण है उनके ऐसे भद्दे कमेंट, वो जो कहते हैं। अभी आपको याद होगा जब भारत मैच जीता पाकिस्तान से, सॉरी, जब पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, उसमें 267 बनाए थे। ईशान किशन ने एक पारी खेली, रौफ ने किशन को आउट किया और रौफ ने कहा चल निकल यहाँ से। ये कौन सी शब्दावली है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये कंप्लीटली गलत है। हालांकि जनता, जैसे हमने पहले भी कहा, पाकिस्तान भारत का फाइनल देखने के लिए आतुर रहती है। या कोई भी पाकिस्तान भारत का मैच, क्यों ना वो वुमेन का ही मैच है, हॉकी मैच हो, जहां भारत पाकिस्तान का नाम आता है, वहां टीआरपी अपने आप बढ़ जाती है। सभी मीडिया चैनल्स भर भर के कवरेज दिखाते हैं, दुनिया भर की बातें, लेकिन ये गलत था, बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं था। इसमें रेडियो स्टेशन का, हालांकि जैसे रामकृष्ण ने कहा, कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी भी व्यक्तिगत राय यही है कि ऐसी टीमों को एटलीस्ट फाइनल में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास शब्दों की कमी है तो भाई थोड़ा हिंदी उर्दू पढ़ लें, शब्द उसमें अच्छे अच्छे हैं। आप जेस्चर देते हैं, उल्टे पलटे कमेंट्स करते हैं, और अच्छा हुआ ना, भारत ने तो प्रैक्टिस कर ली अपनी बैटिंग। जब पाकिस्तान की बारी नहीं आई 266 बनाने के बाद, तो भारत का क्या नुकसान हुआ? भारत की बैटिंग प्रैक्टिस हो गई ना। भारत ने दोनों मैच में बैटिंग प्रैक्टिस तो की। एक मैच में तो 356 मार दिए। वही चीज है कि ये एक गलत तरीका है। आप क्रिकेट को क्रिकेट की भाषा में खेलें। आप अपने बैट से, देखिए सचिन तेंदुलकर को जो भी कुछ कहता था, वो कभी भी कुछ नहीं बोलते थे, वो केवल अपने बैट से जवाब देते थे। तो मुझे लगता है क्यों उनके बैट से रन तो आ नहीं सकते, और उनके पास एक यही हथियार है। और क्रिकेट का जो जेंटलमैन जो गेम है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने की जो साजिश रची जा रही है, मुझे लगता है ये कतई सही नहीं है। और जो उन्होंने उस मैच में किया, बहुत मुझे तकलीफ हुई कि अरे वो आउट हुआ, लेकिन उससे पहले उसने पूरा काम कर दिया था, अपना तो काम तो आपको कर गया ना। हासिल क्या हुआ? बिल्कुल। तो खैर, बस इस अंक में इतना ही। और और इस उम्मीद के साथ कि जब हम अगला शो करें तो इंडिया will be victorious team against Sri Lanka in the Asia Cup final. Other than that, it will be a bit tough to host any show if, because we are Indian, so feelings are attached with Indian players. Somehow भावनाएं बड़ी आहत होती हैं जब भारत हार जाता है किसी भी टीम से, वो चाहे कोई भी टीम हो। तो ये देखो, पर्सनल विचार है, बाकी न्यूट्रल लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है, जेंटलमैन गेम है, और क्रिकेट में जो अच्छा खेला उसकी तारीफ होनी चाहिए। बांग्लादेश ने बढ़िया बॉलिंग की, नो डाउट। भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों ने खराब क्रिकेट का प्रदर्शन किया, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, तमाम कुछ सुनना और पड़ेगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ हम्म कि पाकिस्तान, देखिए हमारी टीम की मेंटेलिटी जब तक नहीं सुधरेगी, सही परिणाम नहीं आएंगे। हमारी टीम की मेंटेलिटी क्या है?
हमारी टीम की मेंटेलिटी ये है, या यूं कहे हमारे लोगों की मेंटेलिटी ये है, या यूं कहे हमारी जनता की मेंटेलिटी ये है कि जो है मेंटेलिटी ये है कि हम पाकिस्तान से ना हारें, चाहे और सबसे हार जाए। होता क्या एब्सोल्युटली। है, होता क्या है ऐसे मौकों पर, हम पाकिस्तान से तो जीत जाते हैं मगर बाकी और सारे मैच हार जाते हैं। क्योंकि पिछले एशिया कप में मुझे अच्छे से याद है, पिछले एशिया कप में यही हुआ था, हमने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसमें शायद कोहली ने रॉक 2 छक्के रॉक मारे को थे। छक्के लगाए थे, हुँ, जहाँ तक मैं सही हूँ तो। हुँ। उसके बाद जब सुपर 4 आया, वहां पे भारत शायद 2 या श्रीलंका से हार के। 3 मैच हार हुँ, गया आई थिंक। वहां हुँ। शायद पाकिस्तान से भी हारा शायद, और श्रीलंका से भी हारा संभवतः। हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है ये ये दिमाग में मेंटालिटी सोच, बदलनी बिल्कुल पड़ेगी, ये बिल्कुल। सोच बदलनी पड़ेगी आपके लिए। आप आप टूर्नामेंट खेलने आए हैं, आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं, आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं। यहाँ पे आप फाइनल में तभी जाएंगे जब आप सभी टीमों को हराएंगे। और देखिए, चीजें भावनाओं में कुछ और होती हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। कम से कम जो खिलाड़ी हैं उनके मन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि हमें, चाहे अपोनेंट कोई भी हो, हमें उससे पुरजोर तरीके से, दिल से हमें मेहनत करनी है, खेलना है, तभी रिजल्ट सामने आएंगे। चाहे पाकिस्तान हो और चाहे एक बांग्लादेश या हांगकांग की टीम हो, हमें मेहनत करनी ही करनी है। अदरवाइज यदि हम ये मानेंगे कि पाकिस्तान से हमें केवल जीतना है, तो मुझे लगता है कभी भी भारत का विश्व विजेता बनने का सपना पूरा नहीं होगा और वो अधूरा ही रह जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। ये हम पिछले कई शोज़ में ये बात डिस्कस करते आए हैं, अगर आपको याद हो तो इसी इसी चैनल पर, इसी प्लेटफ़ॉर्म पर हमने डिस्कस किया है कि भारत को और भारत के लोगों को, हालाँकि खिलाड़ियों में शायद ये मेंटालिटी कुछ हद तक ना भी हो, लेकिन जनता का जो एक प्रेशर होता है ना, जो एक्सपेक्टेशन होती है आपके ऊपर, करोड़ों निगाहें होती हैं, सब आपसे सवाल या निशान के साथ देखती हैं आपको कि अगर पाकिस्तान से आप हार गए तो मतलब आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान भी एक टीम है, कभी उसका भी दिन हो सकता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपने आप को आप थोड़ा मेंटली चेंज करें, और भारत अगर पाकिस्तान से जीते इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड कप हमने उठा के कब्जा कर लिया या एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान को क्या हुआ, हमने हरा दिया 228 रन से, हरा दिया ना 228 रन से। अल्टीमेटली बांग्लादेश से आप हार गए 6 रन 7 रन से, क्या फायदा हुआ? तो पाकिस्तान से तो अच्छी टीम बांग्लादेश नहीं है ना। ऑन पेपर कह लीजिए या ऑफ पेपर कह लीजिए, पाकिस्तान तो बेटर साइड है। तो ये सब चीजें हैं। खैर, इस पर अगर हम बात करेंगे तो रात बीत जाएगी, लेकिन चर्चाएं खत्म नहीं होंगी, इसलिए मुझे लगता है आज के शो को यहीं समाप्त करना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर मिलेंगे फाइनल मैच पर डिस्कशन के लिए। और परसों जब हम शो करने आए, तो ऐसा अगर हो भारत के हाथ में एशिया कप हो तो सोने पे सुहागा होगा। बहरहाल रामकृष्ण जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया इस भरी रात में भी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपसे जब भी समय मांगा जाएगा आप समय एटलीस्ट देते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, गुड नाइट, शब बखैर, एंड सी यू अगेन।